इसको हमारे पास फोर्स होती है F इक्वल टू GMM अपॉन x स्क्वायर and when I displace it from A to B for a very small displacement dx, then small amount of work is done, that is equal to F dot dx or F GMM upon x square, that is the value of F into dx, that is displacement into cos of the angle between the two, both are in the downward direction, so cos 0 is there, so it is equal to GMM upon x square into dx. Okay, so total amount of work done in bringing the body from infinity to point P, infinity से लेके आना हमने point P तक, और point P का distance center से कितना है R, so therefore total amount of work done is equal to from infinity to R of dW, and इसके बाद बेटे हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी. ओके, यहाँ पे जो है GMM को हमने बाहर निकाल दिया because all these three are constants. 1 upon x square dx, अब 1 upon x square जो होता है इसको ऊपर ले जाके बन जाएगा x raised to power minus 2 into dx. Okay, so therefore it is equal to what? It is equal to GMM. Okay, integration. अब बेटे x की जब इंटीग्रेशन होगी तो इसमें 1 क्या हो जाएगा, प्लस होगा. ओके, और जितनी फिर पावर 1 उससे डिवाइड हो जाएगा तो आ जाएगा रेज टू पावर -1 डिवाइडेड बाय -1 फ्रॉम लोअर लिमिट इंफिनिटी टू अपर लिमिट व्हाट R. So therefore it is equal to what? अब बेटे -1 को मैं बाहर कॉमन ले आऊंगा तो आएगा माइनस GMM into 1 raised to x raised to power -1 from infinity to R, or it is equal to minus GMM 1 upon x raised to power -1 को मैं लिख दूंगा 1 upon x raised to power infinity to R. Okay, and now तो ये आगे बेटे आगे माइनस GMM. अब इसको ऊपर करेंगे बेटे तो आप अपर लिमिट आएगा R माइनस लोअर लिमिट क्या आएगा इंफिनिटी, so therefore it is equal to minus 1 upon R minus 1 upon infinity. 1 upon infinity की वैल्यू कितनी होती है बेटा जी, बोलो शाबाश. 0. ओके, सो therefore ये आगे बेटे हमारे पास W is equal to minus GMM upon R. So this is the total amount of work done in bringing the body of mass small m from infinity to point P, whose distance is R from the center of Earth. This amount of work done will store in the body in the form of its gravitational potential energy. Write down बेटे, this amount of work done will store in the body in the form of its gravitational potential energy. In the form of its gravitational potential energy, that is W is equal to capital U. Capital U को कल बताया था बेटे, it is noted for this gravitational potential energy. U is equal to minus GMM upon R. Okay, this is equation number 4, minus GMM upon R. Okay, व्हाट डज, अब देखो बेटे मैंने आपको बताया न्यूमेरिकल में भी अगर आंसर में माइनस आ जाए या आर्टिकल में भी आंसर में माइनस आए तो इस माइनस का हमें बताना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है. ओके, द नेगेटिव साइन, राइट डाउन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है. व्हाट डज द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स हियर. ओके, द नेगेटिव साइन हियर इंडिकेट्स दैट the body of mass small m, is lying at a point P,
or is lying in negative energy dome. नेगेटिव एनर्जी डोम, नेगेटिव एनर्जी डोम जो वर्ड है बेटे नया है, इसको अंडरलाइन करो के नेगेटिव एनर्जी डोम. नेगेटिव एनर्जी मीन्स attractive force. Negative energy means attractive force between the two. Negative energy means attractive force between the two, and zero energy means the body is lying at a point. Zero energy means the body is lying at a point where the gravitational force on the body is zero, where the gravitational force on the body is zero, and such a point is lying at infinity. And such a point is lying at infinity, because at infinity the force of attraction between earth and the body, the force of attraction between the earth and the body is given by write down beta, ये देखो, that is capital F is equal to G capital M small m upon x square की जगह आप लिखो infinity square. फोर्स जब बॉडी इंफिनिटी में पड़ी होगी तो जी तो कांस्टेंट वही होगा, चाहे जहां बॉडी पड़ी हो, एम भी कांस्टेंट है, स्मॉल एम भी, लेकिन ये जो एक्स है इसकी जगह आ जाएगा इंफिनिटी स्क्वायर. राइट डाउन. सो एफ इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन इंफिनिटी स्क्वायर. राइट डाउन. और इंफिनिटी स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटे, इंफिनिटी को स्क्वायर करें चाहे इसका ट्रिपल करें तो कितना हो जाएगा इंफिनिटी. Something divided by infinity is equal to zero. Okay. Zero. Something divided by infinity is equal to zero. Right down. Next article, gravitational potential. Gravitational potential. Gravitational potential. Gravitational potential due to the gravitational force of Earth is defined as, right down, it is defined as the gravitational potential energy of a particle. It is defined as the gravitational potential energy of a particle of unit mass at that point. Of unit mass at that point. It is denoted by capital V. It is denoted by capital V. Therefore, by definition, capital V is equal to U upon M. Therefore, capital V is equal to U. What is U? U, gravitational potential energy per unit mass. Okay, so therefore, capital U is what? So therefore, value of capital U, but we have to find out that is equal to minus G capital M small m
अपॉन कितना था बेटा, बोलो शाबाश, बोलो अपॉन -g जी बताइए, x square on r अपॉन आर। ओके, अगर upon बॉडी, r लिसन, अगर बॉडी पी के ऊपर है तो आपने आर लेना, अगर बॉडी ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ है तो क्या लेना आपने, कैपिटल आर। ओके, सो देयरफॉर इनटू एम, ए एम कौन सा है जो डिनोमिनेटर में। ओके, सो एम से एम क्या हो गया बेटा, कैंसिल, सो देयरफॉर इट इज इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन आर। यहाँ जरूर लिखना बेटे। ओके, क्या लिखना, व्हेन r is greater than r, small r is greater than capital R। ओके, yes sir इसमें वी आर लिख लो यहाँ पे, वी आर। ओके, इसका मतलब हो गया पोटेंशियल एट पॉइंट आर, और आगे लिख लो v इंटू कैपिटल आर, वी कैपिटल आर इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम अपॉन कैपिटल आर व्हेन स्मॉल r is equal to capital R, when small r is equal to capital R। So therefore बेटे from this relation स्टार लगा के लिखो, 1 मार्क या 2 मार्क्स का ना ग्राफ बनाने को आ जाता है, ड्रॉ करने को। Therefore gravitational potential is inversely proportional to R। ग्राफ में आगे बता सकता हूं आपको, दो ग्राफ कट्टी होके। Therefore gravitational potential is inversely proportional to R। यस बेटे, इसका यूनिट कौन करेगा बच्चा, ड्राइव, बोलो शाबाश। इसका यूनिट आ जाएगा, जी का क्या होता है यूनिट, बोलो शाबाश, जी का यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम माइनस 2। आगे मास आ गया, एक बन गया किलोग्राम, और नीचे आ गया क्या, मीटर। तो 1 मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, किलोग्राम से 1 किलोग्राम कैंसिल हो गया, आपके पास क्या रह गया, न्यूटन मीटर पर केजी। एंड न्यूटन मीटर क्या होता है, joule per kg न्यूटन मीटर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एंड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क। ओके, वर्क फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क, तो इसको हम लिख सकते हैं जॉल, लिखते हैं जॉल पर किलोग्राम। आप चाहे इसको ऐसे रख दो बेटे, ओके, न्यूटन मीटर पर किलोग्राम, आप चाहे इसको न्यूटन मीटर पर ग्राम या जॉल पर किलोग्राम लिख दो, ओके, हार्डली मैटर। ओके बेटे, नाउ ओपन योर एनसीईआरटी बुक, उसमें एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। सर पेज नंबर बता दो प्लीज। पेज नंबर बेटा देखो, पेज नंबर ओपन नहीं होगा मेरे से, मैं रेफरेंस क्वेश्चन ही बुक, बता। मैं रेफरेंस बुक से करवा रहा हूँ, रेफरेंस बुक तो आपके पास है नहीं है। ठीक है एनसीईआरटी का सर एग्जाम, पेज नंबर 192 है। 192, यस हाँ। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 4 पार्टिकल्स, find the potential energy of a system of 4 particles placed at the vertices of a square of side L, placed at the vertices of a square of side L, also obtain the potential at the center of the square, also obtain the potential at the center of the square। बेटा मैम ने अटेंडेंस फॉर्म किया, शेयर है ना, इसको प्लीज करो फिल। yes बेटा, so what is given to you, here is a square, okay, at the vertices of that, at point A, B, C and D, masses, equal masses M, equal masses M, equal masses M and M are placed, and each side of the square is L। ओके, सो कह रहा है पहले तो इन चारों का क्या फाइंड आउट करो,
बोलो शाबाश। इन चारों का क्या फाइंड आउट करो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके सो बेटे देखो लिसन, ये जो ए पे है इसका डिस्टेंस इससे कितना एल है, बी से सी का एल डिस्टेंस है, सी से डी का भी एल डिस्टेंस है, और ए से डी का भी कितना एल डिस्टेंस है। लेकिन ए और सी के बीच का डिस्टेंस कितना होगा बेटा, बोलो शाबाश। ये फाइंड आउट कर लेंगे ना, यस स्टूडेंट्स, फाइंड आउट हो जाएगा। कितना आ जाएगा बेटे, ये जो डिस्टेंस है डी बी या ए सी, इट इज इक्वल टू अंडर रूट 2 एल, it is equal to under root 2 L. Okay, so therefore we know UR means gravitational potential energy at a distance R is given by minus GMM upon R, is given by minus GMM upon R. Therefore gravitational potential energy at a distance L plus gravitational potential energy at a distance under root 2L plus gravitational potential energy at a distance 2L is equal to total gravitational potential energy of the system of 4 masses. Okay, so therefore बेटे अब ये जो UL है देखो लिसन, ए से बी का डिस्टेंस एल, एक पोटेंशियल एनर्जी दोनों की होगी, एक बी और सी की होगी एल डिस्टेंस पे, एक एल और डी की होगी, सॉरी सी और डी की होगी एल डिस्टेंस पे, और एक ए और डी की होगी। तो एल डिस्टेंस पे कितनी हो गई, 4 प्लस ये जो अंडर रूट 2 एल डिस्टेंस है, इसको अंडर रूट 2 एल लिख लो या डायगोनल लिख लो, मर्जी आपकी, डी है ना, फिर यहाँ इसको स्पेशल लिखना, पर डी का मतलब डायगोनल है। तो डायगोनल के ऊपर लिखना, डायगोनल के ऊपर कितनी एनर्जी है, एक तो ए और सी के बीच में नंबर 1, और दूसरा किसके बीच में, डी और बी के बीच में ना। ओके सो देयरफॉर ये आ जाएगा बेटे मेरे पास कितना आएगा, -4 इंटू जी एम एम अपॉन एल। देखो लिसन बेटा जी इधर देखो, एक कॉम्बिनेशन के बीच की एनर्जी कितनी होगी, -GMM/L। हाँ ये दोनों स्मॉल एम है ना। ओके तो ए के बीच की होगी -GMM/L, तो 4 कॉम्बिनेशन, 4 की कितनी हो जाएगी, इंटू 4 है ना। यस सर। प्लस आगे 2 कॉम्बिनेशन है, इनकी कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस GMM स्मॉल m अपॉन अंडर रूट 2L अपॉन अंडर रूट 2L। ओके ये बढ़ेगी मेरे पास कितनी, सो देयरफॉर, लेकिन ये तो एक ही आई है ना, और मेरे पास कितने होंगे, 2 अंडर रूट 2L के कितने सेट हैं, ए सी एक सेट हो गया और बी डी दूसरा हो गया। तो देयरफॉर ये आ गया -4 इंटू जी एम स्क्वायर अपॉन एल -2 जी एम स्क्वायर अपॉन रूट 2L। ओके और इट इज इक्वल टू -2 जी एम स्क्वायर अपॉन एल, जी एम स्क्वायर अपॉन एल। अंतर आ जाएगा बेटा, क्या बोलो शाबाश, 2 प्लस, और क्या बचेगा बेटा बोलो शाबाश, 1/√2 है ना, और इट इज इक्वल टू -GM स्क्वायर अपॉन एल इंटू 2 + 1 अपॉन 1.414, और इट इज इक्वल टू -GM स्क्वायर अपॉन एल इंटू 2.828 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1.414।
2 भी है बेटा, कॉमन 2 भी है आपके यहाँ, बाहर कॉमन 2 भी है। तो बेटे सॉल्व करने के बाद आ जाएगा आपके पास -5.414 gm² अपॉन L, gm² अपॉन L। ये तो आगे बेटे टोटल पोटेंशियल एनर्जी है ना सभी की मिला के। और एक पूछ रहा है व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी एट द सेंटर। तो लिसन, एट द सेंटर देखो बेटे, लिसन, सेंटर से जो डिस्टेंस है ए का वो कितना है, √2L/2 है ना। Yes, sir. Yes, sir. और दूसरे Yes. का भी कितना है, सेम, तीसरे का भी सेम, √2 चौथे का भी सेम। तो 4 सेट आ गए मेरे पास है ना। तो राइट डाउन, यहां लिख रहा हूं बेटे मैं, पोटेंशियल एनर्जी एट द सेंटर UC इज इक्वल टू -4 इंटू G इंटू m²। m² का तो पता चल गया आपको है ना। लिसन नहीं, m² बेटा यहाँ पे आएगा क्योंकि सेंटर के ऊपर कोई पार्टिकल नहीं है। Gm अपॉन कितना आएगा बेटे, डिस्टेंस बोलो, √2L अपॉन 2 सो ये आ जाएगा -8 Gm अपॉन √2L। ओके, रूट वाला, अच्छा √2 ही है। L भी है। यस बेटे, राइट डाउन नेक्स्ट, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। Gravitational field intensity. Gravitational field intensity. The gravitational field intensity or the strength of gravitational field or the strength of gravitational field at a point is defined as the force experienced by a unit mass when placed at that point. It is denoted by capital I vector. And is defined as gravitational force per unit mass. Or I vector is equal to capital G, capital M, small m upon R square, okay, into m into unit vector. लिसन बेटे, अगर यहां से हम वेक्टर को हटा दें तो यहां से यूनिट वेक्टर हट जाएगा। ओके ओके, Yes. m से m बेटे कैंसिल हो गया। सो देयरफॉर कैपिटल I वेक्टर इज इक्वल टू G capital M upon R square into unit vector, and in magnitude
कैपिटल I is equal to G कैपिटल M upon R square, और बेटे स्टार लगा के लिखेंगे I is directly proportional to 1 upon R square।